Shweta ji. Good morning. We are now live. Good morning. Good morning. Namaskar. Jai Hind. Welcome everyone to today's session. Today towards women's safety. It is presented to you by Doon Citizens Online. थोड़ा Doon Citizens Online के बारे में. We are a community of like-minded people coming together with one objective: making Dehradun a better place and the lives of its people richer and more wholesome. ये एक वॉलंटरी ग्रुप है. वी एनकरेज यू टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. हमें आप फेसबुक पे लाइक कीजिए, सारे इंस्टा चैनल्स पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे लाइक कीजिए. Our objective is that through various workshops and sessions at DCO, we try and bring very diverse topics together. And the idea is that we touch upon various aspects of life. The endeavor is to bring a holistic approach to life, pick concerns from our community and raise them to the authorities that need to address them. और उसी के हिसाब से आज हमने ये वुमेन सेफ्टी का प्रोग्राम अरेंज किया है. एंड लाइक यू सी वी हैव अ very very powerful panel on board. Let me start by introducing them to you. Firstly, we have Mr. Ashok Kumar ji, DG Crime, Law and Order with us. Good morning, Ashok Kumar ji, and thank you for being here. Good morning, Sarika ji. आपने अपना संडे मॉर्निंग हमें दिया. थैंक यू. मुझे पता है आप खूब सारी मॉर्निंग में संडे को आपका कुछ गेम्स होते हैं, बैडमिंटन वगैरह होता है. सो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस ऑन योर संडे मॉर्निंग. जी, थैंक यू. I'd like to introduce. वैसे देहरादून में there is nobody who does not know him, but I would still like to talk about his background, etc. He was born and brought up in a small village in Purana, district Panipat, Haryana. He received his primary education from the village government school and went on to do BTech in 86 and MTech in 88 from IIT Delhi. He joined the IPS services in 89. Served in various challenging assignments in the state of UP and Uttarakhand, in places like Allahabad, Aligarh, Chamoli, Mathura, etc. He was in डिवाइस कम इसमें यूज करो ना, वाईफाई में ये बहुत कट रही है. तुम अपना कहाँ बंद कर दो. तुम श्वेता जी आपको अपने आप को म्यूट पे डालना होगा. आई एम सॉरी जी. He was instrumental in eliminating terrorism from Tarai region of Kumaon. He's presently posted in Dehradun, like I said, DG Crime, Law and Order. He's held the portfolio of IG Garhwal and IG Kumaon, where he worked towards humane and victim-oriented policing. He also worked as Chief of Intelligence and Security Uttarakhand and Director Vigilance Uttarakhand, where he started a major drive against corruption. He's received the UN Medal for serving in strife from Kosovo in the year 2001. He was awarded the Indian Police Medal for meritorious services in 2006. He was also awarded the President's Police Medal for distinguished services on the occasion of Republic Day of 2013. Ashok ji, मतलब your achievements just continue. I have such a long list of it. It is such a privilege. Outstanding contributor to national development, awarded by IIT Delhi alumni. He's been a Senate member of the IIT Delhi for 3 years. Also the president of IIT Delhi Alumni Association. He wrote a very interesting book. He's written a few books, but the one that I know about is Human and Khaki, Khaki Mein Insaan, which has been translated into Bengali, Gujarati and Marathi also. And the book has been awarded Pandit Govit Ballabh Pant Award by the Bureau of Police Research and Development in NHA. He has also authored 3 other books titled Challenges to Internal Security of India, Cracking Civil Services, The Open Secret, and Ethics, Integrity and Aptitude. He's been the president of Uttarakhand State Badminton Association from 2005 to 17. And hence I was saying, I'm sure he was playing badminton in the morning. And his interests include badminton, tennis, riding. He's the force behind Dehradun Marathon, which witnessed participants of more than 20,000 people every year. That was also the first time I met Ashok ji. I remember that marathon very, very well and how very meticulously he planned everything. सुबह 4 बजे तक भी कॉल्स आ रहे होते थे कि ये चीज हुआ कि नहीं, वो चीज हुआ नहीं. अशोक जी, थैंक यू फॉर डूइंग सो मच, not just in your personal capacity, not just in your professional capacity, but also towards bringing marathon to Dehradun, doing so many things in so many fields. Such an honor to have you here. Thank you, Sarika ji. बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने. इतना बनता है अशोक जी. My next guest is Ms. Shweta Chaube. She is the SP City Dehradun.
She is a PPS officer of 2002 batch of Uttarakhand, now the Lady SP City of Dehradun, MPhil degree holder from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She was earlier posted as SP Criminal Investigation Dehradun. She's worked as a circle officer in Haridwar and Dehradun districts. The postings include Circle Office Sadar, Circle Office Traffic in Haridwar, etc. She also served as SP City Nainital and Dehradun as an SP during the Earth Kumbh of 2016. In fact, she was the first lady officer to handle the entire traffic movement during Mahakumbh Mela, which was held in Haridwar in 2010. And for her outstanding contribution, she was awarded by the then Chief Minister of Uttarakhand State. She was also decorated with the Saharniye Seva Police Medal for her outstanding contribution in managing the central control room and help desk for relief and rescue operations during the Kedarnath floods. Presently, she's working as SP City Dehradun. The one thing that I also want to bring about later in our conversation is that she started the program Pink Team, comprising of Mahila Cheetah police officers for security and safety of girl students in Dehradun. She has cracked many tough cases during her tenure, leads the team from the front, and has been awarded by the governor for cracking the famous dacoit case that took place at the house of the owner of Abhimanyu Cricket Academy. She's a feminist at heart, that's what she says, and always tries to encourage young girls to join this profession. Complete idol for a lot of women. Shweta ji, thank you very much for coming here and taking time out. Thank you, Sarika. Thank you so much. And finally, my dear friend Anupma. Anupma is a multifaceted girl. She's an internationally awarded journalist, professional speaker, life skill trainer. She's a special correspondent with the Pioneer News Group and has co-authored 2 books, out of which one was released by the then Prime Minister of India. She has done more than 800 news stories that have helped in raising key issues, generating public discussions on governance, democracy, reforms, women and child welfare development, inclusive of growth, social justice, gender issues, etc. She is also the first journalist from Uttarakhand to be awarded the coveted Jefferson Fellowship by the East-West Center, United States of America, in 2014, where she was the only journalist from India. She's also the second Indian to win the prestigious American Award in Journalism, the Mary Morgan Hewitt Award, given to one woman journalist from Asia Pacific. Can you imagine? Wow, Anupma, that's fantastic. And the US once in 2 years. She's the recipient of Pride of Doon Award by Doon Citizens Council, Excellence in Journalism Award, the Stree Shakti Samman. My God, Anupma, your list also continues. मुझे लग रहा है क्या powerful panel आया है हमारे साथ. She also conducts soft skills training and behavioral trainings and workshops, and she's an academic topper. She's already done her LLB, she's done her MBA and MBA in honors in journalism. And by the way, in her personal capacity, she also works for stray dogs. तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा अनुपमा कहाँ है, तो कहीं ना कहीं देहरादून के किसी कोने में किसी dog को खाना खिला रही होंगी, बचा रही होंगी, you know. So if you have somebody who needs help, any pet, any stray, she's the go-to person. Anyway, coming back to today's topic, women's. Thank you, Anupma, for being here. My honor. Thank you. I'll go back straight to the topic. आज का topic, women's safety. It is such a pertinent topic. You know, we've been talking about it. There's a lot that is happening in this field, but I feel that, and as a woman I'm speaking, I feel that we don't know enough. Also, during the course of the conversation, I'd like to bring out how काफी कुछ हो रहा है पर शायद हमें पता नहीं है या फिर हम थोड़े से biased हैं नहीं है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे. And towards the end, हमारे बहुत सारे community members ने बहुत specific questions पूछे हैं, which is what we will try and bring out. To all my community members, अगर मेरे से कोई question रह गया क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था, तो I apologize. We'll try and bring it up again. Ashok ji, we'll start with you first. Being the most senior person here, आपका इतने सालों का experience है. Tell us something about what's happening on this within this space. Tell us what you think about the women's security issues in India. सारिका जी, पहले मैं
क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करना चाहूंगा। जी उसका क्या एक्सटेंट है। अगर हम फिगर्स के बारे में बात करें तो हर साल पूरे देश में लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच क्राइम होता है महिलाओं के अगेंस्ट। जी ये नंबर की फिगर है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पूरे देश का जितना टोटल क्राइम है उसका ये 11 से 12% है। यानी जी टोटल क्राइम हमारा 30-31 लाख के रेंज में जाता है एनुअल पूरे देश का। उत्तराखंड का 10-12 हजार जाता है टोटल क्राइम। तो उसका 11 से 12% क्राइम वो है जो वुमेन स्पेसिफिक है, विच इज अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब इसमें अगर हम रेट ऑफ क्राइम पर लाख पॉपुलेशन की बात करें, 1 लाख पॉपुलेशन पे हर साल कितना क्राइम है, तो वो फिगर्स 2018 का डाटा का कंपाइल्ड हुआ है। तो वो 58.8%, यानी रेंजिंग अबाउट नॉट परसेंट, 58.8 नंबर ऑफ क्राइम पर लाख वुमेन पॉपुलेशन। यानी 1 लाख अगर महिलाएं हो तो उनमें से लगभग 60 महिलाओं के अगेंस्ट एनुअली ये क्राइम हो रहा है। ठीक है, दीज आर द क्राइम डाटाज। अब मैं बात करूं कि मेजर क्राइम कौन सा है महिलाओं के अगेंस्ट। अगर हम देखें जो मेजर क्राइम कौन सा है, तो 90% क्राइम चार हेड्स में कवर हो जाता है। जी जितने टोटल क्राइम मैंने बोला 3.78 लाख है 2018 का फिगर, उसका 90% क्राइम 4 बड़े हेड्स में ही कवर हो रहा है। यानी बाकी छोटे छोटे क्राइम जितने मिला के 10% भी नहीं है। तो ये 4 क्राइम कौन कौन से हैं? इनमें सबसे ज्यादा आ रहा है क्रुअल्टी बाय हस्बैंड एंड द फैमिली एंड रिलेटिव्स। बेसिकली ये जो लीगल बात करें तो डोवरी के क्राइम के उसमें कवर हो रहा है। नॉर्मली जो डोवरी का एक्ट है 498A एंड डोवरी एक्ट, तो उसमें क्या है, क्रुअल्टी टू अ वुमन बाय हर हस्बैंड और बाय हर इन लॉज और सच पीपल। तो ये करीब 30% प्लस है these figures. This is also possible. I've seen in many cases. And normal violence cases also get reported in dowry because in the other act, the solution is not easy. So this is the this thing trend. The second most crime is outraging the modesty of a woman. 354 IPC. इसमें 27.6% है। पहले मैं बता दूं जो डोगरी वाला क्राइम है, जिसको कहते हैं हरासमेंट ड्यू टू डोगरी, जो अभी हमने बोला क्रुअल्टी टुवर्ड्स वुमेन, उसमें जो सजा का क्वांटम है वो 3 साल है। अगर सजा होती है किसी को तो 3 साल की सजा होती है। जबकि ये जो 354 है इसको काफी ज्यादा डिफाइन कर दिया अभी आजकल, और इसमें सजा का, जिसको मैंने कहा 27.6% है, जिसको हम आम भाषा में छेड़खानी भी कह देते हैं, तो ये इसमें सजा का क्वांटम 3 से 7 साल तक है। 3 से 7 साल तक है। और हाँ, और इसमें 354 में आजकल 3-4 चीजें और उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दी है, पहले नहीं थी। वो है कि सेक्सुअल हरासमेंट भी इसमें कवर हो गया, उसमें 3 साल की सजा है। फिर इसमें वोयूरिज्म भी इसमें कवर हो गया, उसमें 3 साल की सजा है। फिर इसमें असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब, इसमें 3 से 7 साल की सजा है। और स्टॉकिंग आ गया, उसमें भी 3 से 5 साल की सजा है। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं, व्हाट यू कॉल आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ये इसमें 27.6% क्राइम जो है इसमें वो हो रहा है रिपोर्ट। फिर जो थर्ड हाईएस्ट है वो है एबडक्शन, इसको इलोपमेंट भी बोल सकते हैं। जो लड़कियों को बहला फुसला के शादी के लिए भगा ले जाते हैं, वो जो रिपोर्टेड है उसमें 22% क्राइम, टोटल क्राइम का 22% है, मतलब मेजर चंक है वो भी। इसमें बड़ी बात है कि उसकी इच्छा से हो रहा है। नॉर्मली वो भागती है तो उसको बस बहला फुसला करके ले जा रहा है, जबरदस्ती नहीं ले जा रहा है, मोस्टली वो वाले हैं। और इसमें सजा 7 साल है। और रेप जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्राइम है, जो मोस्ट हीनियस क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, जिसमें सजा भी सबसे ज्यादा है, उसका परसेंटेज ऑफ केसेस देखें तो 10.3% है। यानी साल में पूरे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो 31, 32, 33 हजार फिगर है
पर डे, इसका मतलब पर डे की एवरेज 100 मान लीजिए, 90 to 100 इंडिया फिगर, ऑल इंडिया। अब जो है इसमें जो रेप में मिनिमम सजा 7 साल है और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक भी है, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक भी है। 12 साल से कम का लड़की हो तो डेथ है, और 12 से 16 हो बट उसमें वो हो गैंग रेप हो तो डेथ है। और अगर रेप विक्टिम जो रेप क्रिमिनल जो है दोबारा उसका सेकंड क्राइम है तो भी डेथ से पनिशमेंट हो सकती है। तो या सेक्स या रेप का मर्डर है तो भी डेथ की सजा है। तो ये 4 हेनियस मैंने जो क्राइम बताए, इसमें 90% हमारा क्राइम कवर हो जाता है। बाकी जो क्राइम्स हैं उसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, फिर डोवरी डेथ, मर्डर, एसिड अटैक, ह्यूमन इमोरल ट्रैफिकिंग, ये सारे क्राइम में कवर होकर के करीब 10% हो जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिक आंकड़े बताए। इन आंकड़ों में 2-3 और इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा जो बेसिक डाटा मैंने आपको दिया। एक तो ये कि करीब 10% ऑफ द एक्यूज्ड, अबाउट 10% ऑफ द एक्यूज्ड आर विमेन देमसेल्व्स। जो टोटल एक्यूज्ड हैं इन क्राइम्स में, उनमें से करीब 10% जो है एक्यूज्ड महिलाएं होती हैं। और दूसरा, अगर हम अपनी उसकी बात करें कोर्ट से कितना रिलीफ हो रहा है, तो वहां पे कन्विक्शन परसेंटेज हमारा 23% है। और जो पेंडिंग ट्रायल है वो आज की डेट में उसका बैकलॉग देखें तो 5 साल का बैकलॉग जी। आज के एवरेज क्राइम पे मान लिया 3 लाख एवरेज क्राइम है तो लगभग 15 लाख केसेस पेंडिंग है, यानी 5 साल तो एट एन एवरेज 5 साल का बैकलॉग है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक आंकड़े दिए। एक आंकड़ा और मैं बेसिक देना चाहूंगा जो सब लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, उसके बाद हम जनरल बात कर लेंगे जी। वो आंकड़ा है कि जो रेप के जो एक्यूज्ड हैं उसका हमने वो किया क्लासिफिकेशन, तो लगभग 7-8% फैमिली के लोग हैं, करीब 50% लोग आपके रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं, और करीब 35% लोग जो हैं आपके जानकार हैं, अदर नॉन पीपल whom you know, who are your friends या ऑनलाइन आप जुड़ गए, सोशल मीडिया फ्रेंड्स। तो सिर्फ ये सब मिला के 94% आदमी रेप के क्राइम में 94% आदमी आपका नॉन आदमी जी जी जी। इसका मतलब अननोन जो कल्प्रिट है वो सिर्फ 6%। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है। और बाकी मैं जो क्राइम की बात करूं, वुमेन सेफ्टी पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेट्स शेयर अदर्स आल्सो। क्राइम में बस मुझे ये कहना है कि नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि हमें मेन के अगेंस्ट लड़ना है, वो सोच को चेंज कर करके हमें इस पे आना चाहिए कि वी हैव टू फाइट द क्रिमिनल्स, नॉट मेन। ऑल मेन आर नॉट क्रिमिनल्स, राइट, ऑल मेन आर नॉट क्रिमिनल्स। ये बात हमें इसको ध्यान में रखना होगा। और सभी आदमी खराब नहीं होते, सभी आदमी क्रिमिनल नहीं होते। तो हमें एज ए सोसाइटी क्रिमिनल के अगेंस्ट लड़ना है, पुरुषों के अगेंस्ट नहीं लड़ना है। दैट शुड बी द माइंडसेट। तो हम क्राइम के अगेंस्ट जरूर जीत पाएंगे। थैंक यू जी। So अशोक जी, firstly thank you for sharing all these data points. बहुत important चीजें निकल कर आई हैं। Maximum number of rape crime at least are happening, at least 94% are happening within somebody known. Either आपके first circle में है, second circle में है, और somebody known है. That's such an interesting fact. Yes. दूसरा, the very interesting thing that you just said is that let's fight criminals. Let's not fight men. It's not as if all men are criminals. We need to fight criminals at a very very level, and that applies to both men and women. वो दोनों आदमियों और औरतों पे अप्लाई होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम लोग वापस इस पॉइंट पे दोबारा आते हैं थोड़ा सा और चर्चा करने के लिए, बिकॉज दैट कम्प्लीटली चेंजेस द माइंडसेट। ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट की बात हम कर रहे हैं, एंड वी मस्ट स्पेंड at least 10-15 minutes on this later. I will go to श्वेता जी। श्वेता जी, देहरादून स्पेसिफिक आप कुछ बताना चाहेंगी? आप यहाँ की एसपी सिटी हैं, यहाँ पे देहरादून में क्या हाल है?
अगर मैं देहरादून की बात करूं तो जैसे 1.5 साल पहले मेरी यहाँ नियुक्ति हुई थी, तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो वो ये पाया कि जो स्पेशली हमारी टीनेजर गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा समस्या जो थी वो ईव टीजिंग या हैरेसमेंट की थी। तो हमने जो सबसे पहला प्रयास किया वो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम को टैकल करने की कोशिश की। हमारा जो ऑपरेशन पिंक एक अभियान उस समय चलाया गया था पिछले साल जनवरी में, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए चलाया गया, क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं जो हैं वो इसी चीज की कंप्लेंट करती थी। हमने रेगुलर कॉलेजेस में लड़कियों से, स्कूल्स में जब इंटरेक्शन किया उनसे, तो यही बात बार बार उभर के आई कि वो कॉलेज से जब बाहर निकलती हैं तो उनको ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। That was in a place like city like देहरादून हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया। हमारी चीता पुलिस, जो महिला चीता पुलिस थी, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, तो उनको हमने ऑपरेशन पिंक के रूप में एक अभियान स्टार्ट किया। और स्पेशली हमारे जो कॉलेजेस थे, लाइक जो महिला कॉलेजेस हैं हमारे MKP या DAV कॉलेज, और जो हमारे स्कूल्स हैं SGRR वगैरह, उसके सामने हमने इनकी पोजिशनिंग की। और रेगुलर स्पेशली फोकस जो उनका था वो उसी टाइम पे था जब कॉलेज आने का टाइम था या स्कूल आने का टाइम और उनकी छुट्टी का टाइम। तो इन महिलाएं, जो हमारी महिला कांस्टेबल थी, उनका इनसे जब रेगुलर इंटरेक्शन हुआ इन लड़कियों से, तो उन्होंने अपनी जो है समस्या और खुल के बताना चालू किया। फिर हमारा शुरू हुआ एक जागरूकता संबंधी अभियान। जागरूकता में कई लड़कियां ऐसी थी जो घर में कई तरह की प्रताड़ना झेल रही थी, पर दे वर नॉट कमिंग आउट, वो इस चीज को खुलकर बताती नहीं थी। उनको फिर हमने अपने 1090 नंबर 112 के बारे में अवेयर किया, और साथ ही साथ इन स्कूल्स में फिर हमने वर्कशॉप लगानी चालू की। हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स जो थे, हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर हर थाने में तैनात थी, उन्हें इन चीता पुलिस का नोडल ऑफिसर के रूप में तैनात किया, और उनको बताया कि कैसे उनको रेगुलर जाके इन स्कूल्स में, इन कॉलेजेस में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ताकि इन महिलाओं को और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें। जैसा कि सर ने बोला कि एक जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया वो ईव टीजिंग था, उसके बाद सेकंड जो नंबर पे आता है वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। हमारा जो महिला हेल्पलाइन है उसमें प्रतिदिन जो है हम 60 से 70 ऐसे केसेस को लेते हैं, फाइल उनमें खुलती हैं। 60 से 70 पर डे का दर है जो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड क्राइम है। जो हमारा 1090 है उसमें भी जो मैक्सिमम कॉल्स हमारी आती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड कॉल्स आती हैं, जिनको हम रेगुलर रूप से एंटरटेन करते हैं। हमारे यहाँ जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंटेन है 1090 का जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें, और हमने अलग से फोर्स तैनात की गई है वहां पे, जो फोर्स इस चीज को उनकी रेगुलर उन महिलाओं की काउंसलिंग करता है, और अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो उसमें हम मुकदमे भी पंजीकृत करते हैं। समय समय पर जो है महिलाएं, जो हमारी महिला टीम है, वो इन महिलाओं के घर भी जाती हैं और यह प्रयास करती हैं कि एक घर में जो इस तरह का वायलेंस का जो हिंसक घटनाएं वो बताती हैं, उनका समाधान करने का प्रयास भी करती हैं। और उसके बाद फिर अगर थर्ड कैटेगरी हमारे यहाँ क्राइम से रिलेटेड आती है तो वो अबडक्शन और उसके बाद रेप के क्राइम हैं देहरादून शहर में। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। इनफैक्ट जब मैं अपने क्वेश्चंस को लेट कर रही थी, एक हमारे टीम मेंबर हैं उदित हांडा, उनका क्वेश्चन बिल्कुल यही था कि क्या हम जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबको एडवाइस कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं। तो दिस इज फैंटास्टिक एंड आई थिंक वी विल कम बैक टू दिस अगेन अ लिटिल मोर कि किस तरह के हमारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। ऑल्सो द पिंक द महिला चीता initiative, I think देहरादून में सभी लोगों के बारे में पता है. We are very very proud of it and we really thank you and your team for taking that initiative ahead. Anupma, I think I'll come back to you now as a journalist, as a woman representative here. What do you think are the concerns of a citizen, a woman citizen of Dehradun? What do you have to say about that? आपने बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं इस बारे में. Thank you, Sarika, and thank you the other panelists also for the wonderful insights they've been sharing. Can I be heard clearly? Yes, you can. Yes. Okay. Women's safety in India एक बहुत ही sensitive और बहुत ही important subject है,
And I think the best way that I can summarize it is, do women in India feel that they are safe and free? Majority say no. The second big question is India doing enough for the safety of its women? Majority feel the answer is no. And that's what we really need to accept and understand and work towards. So crime against women or safety of women actually is something that is related to them in their entire life cycle. And you know, there's a phrase जो बहुत short way में इसको symbolize करता है, which says from the womb to the tomb. So what that means is even before a girl is born, crime against women even starts then, which obviously we are talking about female feticide, right? So वहाँ से शुरू होके, starting from female feticide, going on to you know, sexual harassment and human trafficking and domestic violence and everything that we've been discussing. Now I would like to come to your question, key citizens की concerns क्या हैं? Let's take the example of the 2012 gang rape, the Nirbhaya gang rape, right? There was unprecedented international media attention and public outrage and everything. आज 8 साल हो गए हैं. The fact is that we feel that on the ground nothing much is really changed for women. So laws have to be judged not only by their intent but by their implementation. और citizens के लिए एक concern का सबसे बड़ा subject है laws की strict enforcement. Now within this also there are many issues that come up. I'll give you one example. 2018 के जो NCRB के records हैं, जो अशोक जी ने काफी important data share भी किया, उसमें एक और important data ये है कि rape cases में conviction rate is only 27% for 2018. Only 27%. So low conviction rate, criminal justice delivery में delay होना, right? Now, so what happens is, it's often felt that for a woman, एक second ordeal start हो जाती है from the time when she reports the crime. तो एक तो ordeal होती है when a crime is committed against her, लेकिन अगर वो report भी करे तो एक second torture start हो जाता है. और common citizens के लिए वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें आता है fear of retaliation by the accused. मैं complain नहीं करूंगी, मेरे against और हो जाएगा, which is true. We have countless examples, right? Yes. Then investigation process is shoddy. Now again, उसमें भी बहुत issues है, forensic labs and corruption and tampering with evidence, all that, right? We can't get into all of that right now, but to summarize, right? Then, so one part is all of this. Then also the cultural and social ideas about shame and taboo of not reporting, right? So I feel I have to protect the honor of my family. How can I report this? I have to protect my own honor. मुझे सब कैसे देखेंगे, मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, all of that. So we have women जो cyber crime होता है, some sexual maligning that is done and they commit suicide, which is shameful actually, right? So this is the second part. So so crime and safety of women is actually responsibility of both the society and the government, right? And the major concerns are harassment of the victim, as I've said, even by the police. काफी बार ये बोला जाता है कि जब हमने कंप्लेन करी और अक्यूज से ज्यादा तो हमें हरास कर रही है पुलिस. नाउ दैट इज आल्सो समथिंग दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू, राइट? सो देयर आर many sensitive issues. One thing I would like to point out, according to United Nations latest survey of gender inequality index, which means कि एक कंट्री में मेल और फीमेल के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है. So according to the latest survey, India is in the bottom 20% all over the world, right? Now that's something very pertinent. एक पार्ट तो हो गया लॉज होने चाहिए, दूसरा पार्ट हो गया लॉज की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए. There's another third very very important aspect of gender sensitization, right? जो हम कहते भी हैं that boys from an early age need to be taught how to respect women. So behavioral change interventions right from a young age, जब बच्चे छोटे हैं वहीं से अगर करें, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. Absolutely. There has to be a culture against crime of women, right? Crime on women. So so I think, very very pertinent point, Anupma. What we are actually saying is that it can't just be at a tactical level. Of course there are initiatives being taken, there are regulations being provided, there are laws that are in place, but we need to actually change the mindset. And I think as a mother I will speak, as a mother of a 14-15-year-old boy I will speak, that
the change actually starts from me. So even if I have seen a lot of this happening, ये onus मेरा भी है कि मैं अपने बेटे को आगे क्या value system देती हूँ. It is today my responsibility to teach him to respect women, to treat them alike, so that like my wish is कि आज से 25 साल बाद हम ये discussion भी ना कर रहे होंगे. Why do we even have to have a panel discussion on it? So a lot of that actually goes to the behavioral change. But what I'm also hearing is that a lot of women do not come forth because they also understand that the moment they come forth, a different type of harassment starts. Two, like you said, and what Mr. Ashok Kumar ji also said, is कि अगर 94% cases, specifically in the rape and molestation cases, are from the people I know, then chances are कि मैं शायद उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगी. हो सकता है मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे घर वाले ही मुझे इतना प्रेशराइज कर दें कि मैं उस बारे में I will not be able to take it up. So that's a very pertinent thing. We'll come back to this. Ashok ji, coming back to you and taking this discussion ahead from where Anupma left, क्या safety tips लेनी चाहिए औरतों को? What are the safety tips that women should generally be aware of, should practice, etc. देखिए, मैं 4-5 बेसिक कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना चाहूंगा. सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस. राइट. सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स, अवेयरनेस ऑफ लॉ, अवेयरनेस ऑफ योर ओन पावर्स. जागरूकता मतलब कि हम कानून के बारे में जानें, अपने अधिकारों के बारे में जानें, और साथ ही साथ हम अपनी सराउंडिंग्स को भी अवेयर होकर के चलें. जी. ठीक है. कई बारी हमारी जो सेफ्टी की बात करें तो हमारी गट फीलिंग बोलती है कि ये यहाँ पे जाना सेफ नहीं है. और कई बारी टेल साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं कि अब इसके बियॉन्ड जो है यहाँ पे क्राइम पॉसिबल है, क्राइम की पॉसिबिलिटी है. तो ये मतलब अवेयरनेस, आप जितना अवेयर रहेंगे, जितना विजिलेंट रहेंगे, जितना सतर्क रहेंगे, उतना आपको फायदा है. तो फर्स्ट टिप फॉर द सेफ्टी इज बी अवेयर ऑफ ऑल द लॉज, ऑल योर राइट्स, एंड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. दूसरा मेरी सोच है कि वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. देखिए, जितना विमेन एम्पावरमेंट हुआ है उसमें हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं, एक्चुअल में होते जा रहे हैं. पहले जो अभी अनुपमा जी ने भी बात की, लोग रिपोर्ट भी नहीं करते थे और बहुत सारे टैबू थे, बहुत सारे एप्रीहेंशन थे, फियर थे. तो उस सब को छोड़ करके हम जब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम जो है ज्यादा सेफ होंगे. फिजिकली सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाई जाती रही हैं, हम लोग भी पुलिस लाइन में चलाते हैं हर साल, और मेंटली भी हमको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. एक बात सभी लोग समझ लें कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, हमें हमारे देश के कानून में एक राइट टू सेल्फ डिफेंस है. उसका मतलब ये होता है कि इफ समवन इज अटैकिंग यू, then you have the right to kill him if your own life is threatened. If your own life is threatened, ठीक है ना. तो अगर कोई मेरे को इस हद तक मेरे पे अटैक कर रहा है कि मेरी जान जा सकती है उसमें, तो I also have a right to retaliate and kill him or her. So same right exists even for the protection of women when there is a threat of being raped. Right. Therefore, you can go to the extent of killing the man. I mean, not killing, in the retaliation for your self-defense. Right. Even if a person is killed in your retaliation, then it is not a crime. You have that right of self-defense. तो ये आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना होगा. अब तीसरा मेरा सेफ्टी के बारे में, तीसरा मेरा जो वो है मेजर, कि वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस. जी. हमको अलर्ट होना जरूरी है, हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि जो ड्रग एडिक्ट है मान लिया, और जो एक आदमी लिमिट के बियॉन्ड ड्रिंक करता है, सो देन ही बिकम्स ए पोटेंशियल थ्रेट. राइट. तो ऐसे लोगों से मुझे फिर दूर बच के रहना पड़ेगा. सिमिलरली सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, बहुत सारे फेक आईडी लेकर के घूम रहे हैं. तो मेरे को वहां भी अलर्ट होना पड़ेगा. जो मैंने एक कैटेगरी बताई ना आपको कि 35 to 40% आदमी वो है जो मेरा
डायरेक्ट फैमिली या रिलेटिव या पड़ोसी नहीं है जी, ठीक है, वो परंतु मेरे सर्कल में आ गया है थ्रू एक्वेंटेंस। तो उस सर्कल में आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना। सो वी नीड टू बी अलर्ट देयर ऑल्सो। इट इज लाइक दैट कि जब हम सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं तो वी शुड टेक केयर कि वेयर आर वी। हम यूएसए में ड्राइव कर रहे हैं, हम यूरोप में ड्राइव कर रहे हैं, इंडिया के दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं, पहाड़ की सड़कों पे ड्राइव कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड टाइम, राइट, यू विल टेक प्रिकॉशंस। जी, हिल्स में आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकता है, यहाँ पत्थर भी आ सकते हैं। तो सिमिलरली वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस, especially we need to take precautions that while we should avoid the crime prone areas. There are certain areas which we know that certainly there is more crime in these areas, so we need to avoid those areas. And my last suggestion is, of course, fight it out. We have to have that feeling, you know, obstacles will be there. Anupma ji was saying कि थाने में जाएंगे, ये होगा, कोर्ट में है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दूर भी हुई है। लेट मी टेल यू, मेरे को 30 साल हो गया पुलिस में, तो जो माइंडसेट थाने का पुलिस वाले का 30 साल पहले था उससे 10 गुना चेंज आ गया। संवेदनशीलता में बहुत चेंज आई है। पहले जो है हमारे थाने की एक बहुत आदत थी कि ये तो इसका तो नॉर्मल कैरेक्टर ही ऐसा है, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते थे वो लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया, कानून में भी वो आ गया कि यू कैन नॉट पास हिस्ट्री ऑफ अ वुमेन्स this thing behavior will not matter. Yes, it is just immaterial. Let's say you have had a relationship with somebody, जी, ठीक है, और आपके 4 साल 5 साल तक भी रिलेशन रहा, किंतु आज आपने कहा नो, so it is over. That means today he cannot claim that he cannot force himself on you. आज आप जाके रिपोर्ट लिखाना चाहेंगे तो अगर वो फोर्सिबल कुछ भी कर रहा है तो इट इज रेप। Therefore वो जो इतनी सारी जो चेंजेस आई हैं, ये माइंडसेट में भी चेंज आई है और आएगी, टाइम लगता है बट और आएगी धीरे धीरे। तो ये फाइट इट आउट को हमें ये कल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूँ, पहले से बहुत ज्यादा चेंज आया। पहले अनरिपोर्टिंग जो थी बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा थी अनरिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में हर साल जो है रिपोर्ट की रेशो बढ़ती जा रही है। तो ये एक बात है। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ स्टेप्स इन्होंने बताए श्वेता ने, तो मैं पूरे उत्तराखंड के एंगल से आपको बताना चाहूंगा कि एक तो हमने क्या किया है कि जो हमारा डायल 112 है, 112 जो इमरजेंसी नंबर है, ये पहले एक महिला हेल्पलाइन बनाई थी 1090, उसको हमने इसमें मर्ज कर दिया है। ये 24 घंटे 365 दिन काम करती है, कभी भी कॉल करेंगे तो उठेगा जरूर और इसका रिस्पॉन्स जरूर जाएगा। कोई ना कोई आदमी आपको एक बार अटेंड जरूर करेगा। एट एन एवरेज हमारी 500-600 कॉल पर मंथ आ रही है इस पे, ठीक है, उसको हम 100% अटेंड करते हैं। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9411112780, 9411112780। ये पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर है। इसके ऊपर भी कोई भी कंप्लेंट व्हाट्सएप भी की जा सकती है सीधे सीधे। वो 100% अटेंड जरूर होगी, उसमें मेरिट है नहीं मेरिट है वो अगला सवाल है, बट वो अटेंड जरूर होगी, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ। फिर हमारे एक देवभूमि उत्तराखंड मोबाइल ऐप है, उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप, उससे भी हम कंप्लेंट लेते हैं। और एक हमारा मुख्यालय की ईमेल आईडी है, इंटरनेट पे भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे भी ले सकते हैं कंप्लेंट। बट मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव जो है, आपको इमरजेंसी में 112 और कंप्लेंट में व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है, इसके थ्रू आप कोई भी लोग रिपोर्ट करेंगे तो उनको इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा वुमेन सेफ्टी के लिए। और जो एक सवाल और, थानों पे जो एक कई लोग बोलते हैं कि महिला थाना ज्यादा खोल दीजिए, तो हमने उत्तराखंड का हमारा एक्सपेरिमेंट, इवन यूपी का एक्सपेरिमेंट, हमने यूपी में पुलिसिंग की है 12 साल, वो ये बताता है कि महिला थाने हमारे सक्सेसफुल नहीं है। लेट मी टेल यू, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो बोलते थे, सिर्फ जिसमें महिला ही होती थी, पूरा स्टाफ कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। उसकी बजाय हमने यहाँ एक मॉडल बनाया, वो बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ के मॉडल में अभी हमने क्या किया, हर थाने में कम से कम एक सब इंस्पेक्टर महिला होना मैंडेटरी है और 4 महिला कांस्टेबल होना मैंडेटरी है।
तो हम हर थाने को महिला फ्रेंडली बना रहे हैं और हमने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क लगा दिया है। और पिछले साल से उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था, पूरे देश के थानों में सीसीटीवी लग गए। दैट इंश्योर्स कि आपके साथ किसी तरह का जो है क्राइम नहीं हो सकता, एटलीस्ट वहाँ थाने में आपके साथ, और आप बिहेवियर भी जो आपको रिस्पॉन्स भी कहीं अच्छा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। तो मेरा कहना है कि सेफ्टी के लिए, बाकी तो जितनी बातें श्वेता ने भी बताई और वो सब हम लोग करते रहते हैं, हमारे चीता मोबाइल्स हैं, वुमेन चीता मोबाइल्स हैं। तो ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, कॉमन कॉज एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है आई थिंक, और उसने फेवरेबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन में उत्तराखंड को नंबर 1 पे प्लेस किया। उसने पूरे देश भर के पुलिस के आंकड़े निकाले हैं और फेवरेबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन में उत्तराखंड इज नंबर 1 एज पर देयर डाटा। राइट, दैट इज फैंटास्टिक अशोक जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही आई ओपनिंग चीजें जो निकल कर आई हैं, कुछ जो मैंने नोट भी करी हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत एम्पावरिंग लगी, जो अभी आपने मुझे हम सबको बताया, राइट टू सेल्फ डिफेंस as a woman, as a citizen, it applies to everybody, but of course right now since we are talking from a woman's perspective, अगर मुझे लगे कि मैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हूँ या मैं ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में हूँ जिसमें it could lead to a rape or molestation or anything else, I have a right to defend my life and I have a right to defend my dignity and it will not be considered a crime. To the extent of death of the other man. To the extent of death of the other man, this is extremely powerful. हमें शायद इस बारे में पता भी नहीं है, हमारे राइट्स वगैरह हम सबने बचपन में पढ़े थे, बट फॉर अस टू बी अवेयर दैट इफ आई एम इन अ सिचुएशन, मेरी लाइफ के लिए, मेरी मॉडेस्टी के लिए, तो मैं किसी भी एक्सटेंट तक जाकर अपनी लाइफ को बचा सकती हूँ। आई डू हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंड। एक्सट्रीमली उसमें शब्द यूज रेप है, ये ध्यान रखिएगा, इफ टीचिंग नहीं है, मतलब वो हाँ, तो वो अगर मेरा लाइफ थ्रेटनिंग है या और इफ इट मे लीड टू रेप, then I can go to any extent to protect myself. That I found extremely empowering. दूसरी चीज आपने हमें बताई कि इनफैक्ट इट वाज अ क्वेश्चन मैंने जो बात के लिए रखा था, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। कुछ जगहों पर ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस हैं और सक्सेसफुल हैं, बट यू आर सेइंग दैट इन उत्तराखंड एंड यूपी वी सॉ इतना सक्सेसफुल नहीं था। But what we do have now is that we have CCTV cameras in all stations, one. And two, we mandatorily have some women constables appointed all the time. So if you are scared, जी 24 घंटे, yes. तो अगर आप scared हैं किसी वजह से, तो by all means go. The other very important thing you said was that look, challenges will happen, but आप उसको लड़ना मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, जैसा कि अनुपमा ने भी पहले बोला कि उसके बाद की प्रोसेस भी बहुत कभी-कभी हैरेसिंग हो जाती है। बट इफ वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चेंज का जो पूरा प्रोसेस है उससे गो थ्रू करें। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वी फाइट इट, नो मैटर व्हाट, वी फाइट इट इन द प्रोसेस, वी फाइट इट अकॉर्डिंगली। और एक्चुअली टफ है, और जो डाटा अनुपमा ने दिया कि 27% रेप में कन्विक्शन है, ओवरऑल वुमेन क्राइम में कन्विक्शन 23% है। तो ये जरूर हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कन्विक्शन रेट को। राइट। तो इज देयर समथिंग हैपनिंग ऑन दैट साइड सर? अनुपमा का पॉइंट बहुत वैलिड है, उस बारे में क्या हो रहा है? देखिए, उसमें तो जैसे पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म चलते रहते हैं, ऐसे ही जुडिशरी में भी चेंजेस आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। डिले जो है, मैंने कहा 5 साल का एवरेज डिले है, तो 5 साल का जस्टिस डिलेड से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कन्विक्शन रेट से भी बड़ी प्रॉब्लम डिले है। तो अभी कोर्ट ने बहुत चीजों में मैंडेटरी कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया अभी, ठीक है, बहुत चीजों में ट्रायल को टाइम बाउंड कर दिया है, पोक्सो में भी, रेप में भी, तो वो उसका फायदा होगा। मैं खाली एक फोर्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि नए चेंजेस अभी रिसेंटली आए हैं, इनका इम्पैक्ट अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि उसको टाइमली सजा होना ज्यादा जरूरी है। 5 साल तक लिंगर ऑन कर गया, उसकी वजह से कन्विक्शन रेट लो आ रहा है, फिर लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, कुछ और कर ले रहे हैं। तो वो उसको हमें अपना जो
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाले जो थ्योरी है, तो जस्टिस डिलेड के खिलाफ हमें उसमें क्या क्या स्टेप्स और उठाए जा सकते हैं। आपको पता है जुडिशियल रिफॉर्म्स एक अलग इशू है, सबसे बड़ा तो उसमें डेट्स पे डेट्स लेते रहते थे लोग पहले, आजकल वो चेंज हुआ है, स्पेशली पोक्सो एक्ट में और रेप के केसेस में। तो लेट्स होप कि इससे चीजों में सुधार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो पूरे प्रोसेस में है, पहले हम स्टेशन में जाके देख रहे हैं, वहां पर चेंजेस आ रहे हैं। वी आर नाउ सेइंग कि पहले जिस तरह से ट्रीट किया जाता था वुमेन को, वो माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। नो, वी हैवंट रीच्ड देयर, बट आई थिंक इट्स अ वे फॉरवर्ड एंड वी स्टार्टेड डूइंग सम गुड वर्क इज व्हाट वी आर हियरिंग। दूसरा, जो पूरा डिले है जो जुडिशियल सिस्टम में होता है, apparently there are also some changes happening there, and I think we'll need another panel to talk about that. Yeah, but you know there are measures. We can have some judges and some advocates on that panel. Absolutely, maybe. Absolutely. क्योंकि like अनुपा से process शुरू तो पुलिस स्टेशन में होता है पर खत्म कोर्ट में जाके होता है, and I think we will have to have both sets of people there. The other interesting thing that came up is, of course, आजकल use of social media or digital इतना ज़्यादा हो गया है that connecting to people is becoming very easy, and hence the entire cyber crime space has come up in the last few years. Anupa, do you have anything to say on that? Have you done any articles on that specifically, or your experience, just your experience? On cybercrime? Yes. Okay. So, I think it's already known that figures on cybercrime in India show that every year cybercrime is increasing. That's one. And second, cybercrime is a relatively new concept for not just the administration, but also for the people. So how to deal with it if you're a victim of a cybercrime, right? And what are the provisions that you have, and the conviction and the whole fear against committing a cybercrime is these are concerns that need to be looked into. And I know on that front, if I do have some information about what Uttarakhand police has been doing. So Uttarakhand police does have its own cybercrime cell where investigations are being done quickly, and there have been many cases that have where the accused has been punished as well. But again, here I would say that, see, in cybercrime, another thing is this needs a different kind of investigation, right? So we need to have skilled people who have the technical know-how, who understand what cybercrime is, and who can actually follow it to the end. And again, this is a crime like all other crimes. So जो बाकी crimes के साथ concerns हैं, वो इसमें भी हैं, right? बिल्कुल. And a lot of awareness is needed in this. Especially there is another angle to it. Cybercrime में instantly एक global viewership का angle attached हो जाता है. It is not something that is confined to your homes like domestic violence, right? So if there is, let's say, an obscene video that goes viral, it is like all over the world. So the extent of shaming that a woman feels is unimaginable, and that in this case often leads to कि murder नहीं होगा उसका, but self harm हो जाएगा because she's not able to take it. So this is an area that needs to be looked into for sure. And again, it's all connected. We have the recent locker room case and all these things. So I would say cybercrime is also more of a big socio-cultural issue. देखिए सारिका जी, मैं बात करूँ थोड़ा साइबर क्राइम पे जी। साइबर क्राइम इसलिए हर साल बढ़ रहा है, उन्होंने कहा ये बढ़ता जा रहा है बिकॉज धीरे धीरे दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो क्राइम भी ऑनलाइन हो जाएगा। बिल्कुल, ये गेट में मतलब जैसे पैसा अब ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होने लगा, तो पैसे के जो चोरी करने वाले थे, लूट करने वाले थे, डकैती करने वाले थे, फ्रॉड करने वाले थे, वो सब ऑनलाइन पे आ गए, ठीक है ना। उनमें से जो ज्यादा साइबर स्मार्ट है, जो ज्यादा टेक सही है, वो सब ऑनलाइन हो गए। इसी तरह से जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम करते थे, चाहे वो ऑब्स्टिनिटी है, चाहे वो उसकी इव टीचिंग है, चाहे स्टॉकिंग है, चाहे मेकिंग रिलेशन एंड देन फेक थ्रू फ्रॉड है, उसके थ्रू रेप है, तो वो सारे के सारे अब जो सोशल मीडिया के यूज के थ्रू काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो साइबर क्राइम हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, साइबर क्राइम में जो नॉर्मल क्राइम है वो कहीं खत्म नहीं होता, वो सब का सब लागू है, वो सारे सेक्शंस लागू है, प्लस उसमें ITX की एक सेक्शन और जुड़ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसकी सेक्शन और जुड़ जाती है। तो इसलिए जो भी क्राइम नॉर्मल में आपके साथ हो सकता है, अगर वो साइबर बुलिंग हो रही है आपको कोई, या आपके साथ जो टीचिंग वाली चीजें जो उस पे कर रहा है, या ऑब्स्टिनिटी कर रहा है,
तो वो सारे के सारे क्राइम हैं और सब पनिशेबल है, सब में सजा हो सकती है। वही है कि इसका नंबर एक तो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और दूसरा जैसे अनुपमा जी ने कहा कि उसका एक्सटेंट इतना ज्यादा है, कई बार डैमेज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन एक ही है कि बहुत ज्यादा तो रिपोर्टिंग हो और बहुत ज्यादा एक्शन भी हो। हमारे इसमें साइबर क्राइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि इसको इन्होंने एक्ट में इंस्पेक्टर से नीचे का उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, और इंस्पेक्टर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, इंस्पेक्टर थोड़े लिमिटेड है, तो एसआई हमारे ज्यादा होते हैं, तो वो थोड़ी लिमिटेशन है। इसके बावजूद वी इन उत्तराखंड हैव डन ऑलमोस्ट द बेस्ट पॉसिबल। वी आर टेक सेवी पुलिस, वी आर स्मार्ट पुलिस। मेरे ख्याल से देश की जितनी भी टॉप मोस्ट 3-4 स्टेट्स हैं उनमें उत्तराखंड का नाम है, जो टेक सेवी हैं और स्मार्ट पुलिस है। और साइबर क्राइम में हमने बड़े बड़े क्राइम्स को वर्कआउट किया है, इंक्लूडिंग नाइजीरियन फ्रॉड्स एंड सो मेनी थिंग्स। जी जी जी। तो जैसा अनुपमा ने कहा कि क्राइम ऑनलाइन बढ़ रहा है, एंड जैसा हमने अशोक जी से सुना कि ऑनलाइन बढ़ रहा है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन बढ़ रही हैं। The world is going online, so it is very difficult for the crime to not go online. आज transactions online हो रही, शादियां आजकल पिछले 3 महीने में हमने देखा ऑनलाइन। So needless to say that the crime also is increasing. What we are hearing is कि उत्तराखंड में हमारे पास लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। बट सर थोड़ा सा लाइट और डालिए कि किस चीज को मैं क्राइम समझूंगी सोशली। हर वो चीज जो मैं नॉर्मली, क्योंकि अब हमारी जिंदगी ही ऑनलाइन होती जा रही है, तो एज अ गर्ल पहले मैं शायद सिर्फ ईव टीजिंग को सड़क पे चलते हुए किसी ने ल्यूड रिमार्क दे दिया उसको मैं हैरेसमेंट समझती थी। तो ऑनलाइन में क्या फर्क है? क्या मैं किसी ने भी अगर मुझे कोई भी कमेंट दिया, क्या मैं उसको हैरेसमेंट समझ सकती हूँ? क्या मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती हूँ, या मैं किस एक्सटेंट तक? बिल्कुल सेम चीजें लागू होंगी। किसी ने आपको कोई ऑब्सीन मटेरियल भेजा तो वो 294 आईपीसी में कवर्ड है, ऑब्सीनिटी एट पब्लिक प्लेस, राइट? तो वो हो गया। किसी ने आपको जो है स्टॉकिंग किया, जो रियल लाइफ स्टॉकिंग किया, इवन साइबर स्टॉकिंग कर रहा है आपके मना करने पे, तो वो भी उसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। बुलिंग कर रहा है वो कवर हो जाएगा। किसी ने आपको क्या बोलेंगे, इस तरह के कमेंट्स कर दिए, वो भी उसी में आएगा। जो टीचिंग के जो सेक्शन है वो सब 354 में आ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है। तो बेसिकली 294, 354, 294 इज ऑब्ससेनिटी, 354 इज outraging the modesty of a woman, right? And 5 there is another section 509। सब आजकल मोबाइल में सब है, आप गूगल में डालिए, तीनों का आप सबको पता चल जाएगा। तीन सेक्शन में वुमेन के रेप के अलावा सारे ये वाले क्राइम आ जाते हैं। तो मैंने बोला 294, 354 एंड 509। इवन एक क्राइम है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आई विल टेल यू, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और वो उसके लिए स्पेशल एक्ट भी बना, पहले विशाखा जजमेंट था, बट उसमें सजा सिर्फ 6 महीना 1 साल है, तो वो बहुत ही लाइट है। उसकी बजाय 354 में वो कवर्ड है, तो वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो अगर ये वुमेन अपने मोबाइल फोन से ये 3-4 सेक्शन को अच्छे से पढ़ लें, 254, 354 आईपीसी, 294 आईपीसी, 354 आईपीसी, 509 आईपीसी, और रेप के सेक्शन सब 376 में, 376। तो आपका सारा जो लीगल नॉलेज है ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो 90% क्राइम को कवर करता है। राइट सर। सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हर वो चीज जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होती है वो अब ऑनलाइन हो रही है, एंड इट ट्रांसलेट्स ऑनलाइन कंप्लीटली। तो अगर आपको पहले हैरेसमेंट सड़कों पे होता था, वही हैरेसमेंट अगर आपके सोशल मीडिया पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके पास पूरी राइट है कि आप उसको जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सेक्शन 294, 354 एंड 509 जो कि नॉर्मली हम बाकी चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, ऑल्सो अप्लाइज ऑनलाइन कंप्लीटली। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आवरसेल्व्स अवेयर इज व्हाट वी आर सीइंग। Ashok ji also spoke about the harassment at workplace. ये अब बहुत at least in the corporate circle, और मैं काफी connected हूँ corporate circle से, वहाँ पे ये बहुत prevalent होता जा रहा है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं, अगर आप प्रेशराइज हो रहे हैं किसी भी तरह से, you don't have to take that absolutely at all. श्वेता जी, मैं थोड़ा सा I will bring it back to देहरादून, because ये हम देहरादून कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। Are there any volunteer group that women like us can join and help the
system to work more efficiently. कोई ऐसी organizations है जो हम voluntarily join कर सकें to help overall. Sarika, your voice was breaking. मैं दोबारा बोलती हूँ श्वेता, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटरी ग्रुप्स जो हम सब लोग ज्वाइन कर सकें. ये 2-3 हमारे व्यूअर्स के भी कमेंट्स आए हैं. इज देयर समथिंग वी कैन जॉइन टू हेल्प यू ऑल, एनी काइंड ऑफ forums that we can join? Sarika, we regularly keep taking help. हम काफी सारे ऐसे NGOs हैं जिनकी मदद लेते हैं, because कई बार हमें ऐसी डिस्ट्रेस में महिलाएं मिलती हैं whom we really want to go out and help, पर कभी कभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या साधन नहीं होते कि हम उनको हेल्प कर पाते हैं. We are definitely taking help of many of the NGOs who are working in Dehradun, और वो हमारी काफी उन महिलाओं की मदद कई तरीके से करती हैं, और साथ ही साथ महिलाओं को जब लीगल एड की जरूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड करती हैं. तो इन NGOs के थ्रू आप हमें मदद कर सकते हैं, या वॉलंटरी ऑल्सो यू कैन सपोर्ट द दून पुलिस इन दिस टास्क. थैंक यू. सारिका जी मैं बताता हूँ, हमने हर जिले में एक महिला हेल्पलाइन बनाई है पुलिस में, ठीक है. उसके इंचार्ज एक SI से लेके CO तक हैं, और कभी कभी वो HCCP के अंदर में भी हैं मोस्टली जगहों पर. तो इनको इनसे जो NGOs हैं या जो भी हेल्प ग्रुप्स हैं वो पर्सनली मिल करके, वो अगर मिलेंगे जो भी जिस जिले में हेल्प करना चाहता तो जरूर वो आगे बहुत लोगों को हेल्प कर पाएंगे. उनसे लाइजन रखना ही, उनसे मिलते रहना ही एक अपने आप में एक रास्ता है. Similarly, even at the police headquarters level, there is one full cell women security helpline करके, और उसमें पूरी एडिशनल SP हमारी वहाँ भी तैनात है, ममता बोरा, और इसमें डिप्टी SP हैं, इंस्पेक्टर हैं. तो वहाँ भी अगर किसी को लग रहा है कि किसी को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, so any of the women help groups and NGOs can approach us in the police headquarters and we will ensure that justice is delivered. Fantastic, fantastic. सर मैं अब थोड़े कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जा रही हूँ जो कि हमारे साथ. Can I just add on something very quickly? Please अनुपमा. Okay, thanks. So जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं उस पे कुछ important points, and we have time constraints, but very quickly I would like to point out. No, we don't. It typically extends beyond 1 hour, so you please take your time. Okay, great. So there are some very important points that I feel should be discussed, because it's a very good discussion going on here. Yes. So Sexual Harassment at Workplace Act 2013 का जो है, it was heralded as a milestone act for women in India, right? Of course, it's a step in the right direction, okay, and I hope it is implemented properly. But इससे related, there are 2 important points that I want to bring to attention here. One, India की जो total women workforce है, उसकी 94% unorganized sector में काम करती है. Which means 100 लेडीज में से 94 लेडीज हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेबरर्स हैं या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनको कॉर्पोरेट का सी भी नहीं पता, वो इलिटरेट हैं, अनअवेयर हैं, पुअर हैं, राइट. तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, इसकी विक्टिम सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विमेन, और वही इसके एम्बिट से पूरी तरह छूटी हुई है. सो दिस इज एन इशू ऑफ कंसर्न. नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू, एक्ट के अंदर क्या है कि कॉर्पोरेट्स तो बनाएंगी इंटरनल कमिटीज, और हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी लोकल कमिटी. लोकल कमिटी को इसीलिए डाला था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके लेबरर्स हैं और ये सारी विमेन हैं उनको हेल्प मिले. लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया में हार्डली एनी डिस्ट्रिक्ट हैव मेड इट, और जिन डिस्ट्रिक्ट में बनी है उसमें भी 0 कंप्लेंट्स आई हैं इन 7 years. तो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट जब हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, एजुकेटेड, अर्बन, कॉर्पोरेट विमेन का नहीं सोच सकते. 94% आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, right? So this is one that needs attention. Second, Indian Bar Association ने 2017 में एक सर्वे किया था. Now this is the urban corporate women that we are talking about, जिन्हें लगता है कि बहुत empowered हैं हम. 70% ने कहा था, that is 10 में से 7 women ने कहा था कि उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया सेक्सुअल हरासमेंट जो उनके सीनियर्स ने उनके साथ करा, क्योंकि उन्हें लग रहा था नेगेटिव रिपरकशंस हो जाएंगे उनके अगेंस्ट. पूरी तरह सारिका जी जो अनुपमा जी कह रही हैं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये स्टडी आई है, और ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये कि उनको ये डर लगता है कि मेरे को दूसरी कंपनी फिर जॉब में नहीं लेगी. तो हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है. ये अभी भी इसमें रिपोर्टिंग उस जितनी डिजायरेबल लेवल तक नहीं गई है. बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विद इन द कंपनी जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है
आप विद इन द कंपनी उसकी कमेटीज बनी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है, इस सब के बावजूद जो आईपीसी है वो तो हर एक के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। आदमी सोचता है कि मेरे को खाली कमेटी से ही जस्टिस मिल सकता है, ऐसा नहीं। मतलब दैट ऑप्शन जो 354 वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया और 294, कोई भी मेरे को ऑप्शन मैसेज भेज रहा है, मोबाइल पे भेज रहा है, कहीं भेज रहा है, हा? और किसी भी रूप में इंडिसेंट उसका वो बिहेवियर है या स्टॉकिंग कर रहा है, कोई बॉस स्टॉकिंग कर रहा है, तो वो सारे के सारे 354 में भी कवर्ड है और उसमें सजा कहीं ज्यादा है। बट दीज आर पुलिस केसेस, वो उसका डिपार्टमेंटल एक्शन है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उस आदमी सस्पेंड हो जाएगा, आदमी जॉब से निकाला जा सकता है, किंतु पुलिस ऑप्शन उस सब के इंडिपेंडेंट है। Right. ये मैं बताना चाहता हूँ सबको। Very valid point. वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी उतना ही अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यूज भी करते हैं, ऐसा भी नहीं, एक लिमिट के बियॉन्ड वो लोग यूज भी करते हैं। कंप्लेंट कमेटी नहीं उनकी यूज होती होगी, बट पुलिस वाली ऑप्शन वो यूज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So हाँ, go ahead, अनुपमा, go ahead, please. Okay, so a few more important points जो अभी तक मुझे लगा हमें थोड़े से और टच करने चाहिए। दूसरा, हमने एक और क्राइम की बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट? नाउ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक हाईली अंडर रिपोर्टेड क्राइम है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें एक रीजन ये भी है कि बहुत सीक्रेटिव वे में होता है, राइट? एंड इसकी वजह से, राइट, एंड अशोक जी, ही इज सच अ सीनियर ऑफिसर, ही हैज टोटल ग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, so I'm sure he can throw more light. What I want to tell you is, India में जो latest stats है, 600 women in India go missing every hour. like हर एक घंटे में 600 women missing जाती हैं, which is not something that we can ignore. और human trafficking को enough attention देने की बहुत जरूरी है. It's very very necessary. And just one point here, child marriages are one way through which, you know, women are thrown into human trafficking. तो child marriages को भी, और इसमें consent होती है, religious की भी होती है often. दूसरा, family जो है कई बार वो चुप रहती है trafficking के लिए, क्योंकि उन्हें remittances से money मिल रहा होता है. So as long as they are getting money, they remain quiet. So a lot of these issues that need to be looked into. And the third thing that I want to point out is, जब हम crime against women या women safety की बात करें, तो मैंने शुरू में कहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ पुलिस, सिर्फ लॉज की बात नहीं है. सोसाइटी, कल्चर, माइंडसेट हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. इसमें दिस वन थिंग आई वांट टू से दैट आई फील पॉपुलर कल्चर में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है इंडिया में. आई मीन बहुत अच्छी मूवीज बॉलीवुड में मिल रही है, लेकिन इफ यू सी द मेजॉरिटी ऑफ आइटम नंबर्स दैट कम, देयर इज वन व्हिच सेज, इन व्हिच देयर इज दिस बिग एक्ट्रेस हु सेज, मैं वो तंदूरी चिकन मुझे खा ले दारू के साथ. I mean seriously, is this what you're trying to do? एक दूसरा है, बहुत फेमस सॉन्ग है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, टॉकिंग, राइट? जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल आवारा बोले, ओले ओले. So what I'm trying to say is, in Bollywood culture also हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं सबको. हमें एजुकेटेड लोग तो डिसर्न कर सकते हैं, पर एक अनएजुकेटेड जुवेनाइल बंदा जिसका इतना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, they take wrong cues from all this and it leads to a rape culture, leads to a culture where you don't respect women. So I think that's also what we need to look into. Oh, very valid points, Anupma. Actually, we went from harassment at workplace to human trafficking to actually objectifying women as a whole, as a society. And I don't think it's just relevant in India. It's a global phenomena hai. It is not any different in Hollywood. You go and watch any James Bond movie, you know that there is a woman behind who's, you know, half clad. So I don't think it is pertinent only to India. It is pertinent globally and not just today. It's been happening for years. I think we'll need like about 10 sessions only on that. उसका quantum of that problem वो इतनी बड़ी है और इतनी deep rooted है कि उसके ऊपर तो I think we can, you know, just continue talking, and that needs to be changed at a very human thinking level and behavioral level and upbringing level. उसको मुझे लगता है पहुंचने में बहुत ज़्यादा time लगेगा. So I keep that aside, but I do want to come back to what you were saying. First about workplace harassment कि बहुत ज़्यादा unorganized sector है, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है. 1, 2, organized sector में भी ज़रूरी नहीं है that women actually report everything that is happening because of fear of what will happen, the repercussions, not just within the company, but अगर वो company छोड़ भी देती है तो दूसरा typically आपका background test होता ही है, दूसरी organization may not take it. So there are two things that are coming out clearly. एक तो हमें उसे fight करना ही है. You can't just shy away from fighting it. I have a very dear friend. She was head of HR for a very big publication in Delhi.
being head of HR, she's been fighting it. She quit. पिछले 4 साल से लगी हुई है. To the extent कि उसने जाके law कर लिया. Nidhi, this is for you. I hope you are watching it. And she's been fighting it. It's not been an easy journey, but she gives so many other women a lot of strength. What Ashok ji here is saying is that, look, while within the corporate world you may not be getting the answers, the police is, the entire system is open to everybody. चाहे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए, चाहे आपके कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी रेपरकशंस हो, आपका जो राइट है टू गो एंड रिपोर्ट टू द at the stations to go and fight it out, that still applies. So while at the corporate level there will be one battle, on the personal level, please go and use the system to fight it out, and the police is standing next to you to be able to do that. That is definitely one. The other one we talked about is human trafficking. I think that again is a very, very deep issue. Anupa, thank you for giving those data points. It's almost scary, I'm getting those people just thinking about it. 600 girls going missing every hour in India is, and you're right, it's under wraps. Ji Ashok ji. इसमें कुछ डाटा वो होगा जो अपनी मर्जी से भागते हैं, जो मैंने बोला इलोपमेंट है, एब्डक्शन है, क्योंकि वो भी साल में शायद 50,000 के रेंज में है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है. जी, तो वो डाटा इसमें शामिल होगा, मुझे ऐसा लगता है. Human trafficking overall is 1 million in India per year. Yeah, I'm saying that जैसे अभी अनुपमा ने बोला कि कुछ तो फैमिली ही होते हैं, अपनी बेटियां दे देते हैं, अपनी नीस को बेच देते हैं, अपनी भांजी भतीजियों को बेच देते हैं. दे आर कम्प्लीटली इन अग्रीमेंट विद दैट, एंड दैट एक्चुअली शोज अ वेरी, हमारा जो सोशो इकोनॉमिक लेवल है इंडिया का, इट एक्चुअली इज अ मिरर टू दैट. कोई भी अपनी बेटियों को बेचना नहीं चाहेगा, बट इन द विलेजेस एंड इन स्मॉल टाउन्स इट इज हैपनिंग, एंड इट इज हैपनिंग नॉट for any other reason, but because they can't afford to raise them, so this is actually a very, very sad portrayal of our social economic system also. Imagine the kind of mentality one has to carry to be able to do that. It's not just कि हमारा system कैसे protect कर रहा है, it is also about हमने raise कैसे कर रहा है, क्या वो जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं उतने पाल पा रहे हैं, finally वो क्या कर रहे हैं. It just actually tells at a very mental level how we are thinking and how we are dealing with that. And thank you Anupama for bringing it up a very, very deep rooted level. मैं थोड़ा सा अब इसको light करूंगी. I think we've gone too deep. अशोक जी, श्वेता जी, प्लीज हेल्प मी. अगर हम कभी देखें कि हमारे नेबर के यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एंड एज लाइक आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, but I can see a crime happening and I would like to take action even though they haven't asked me for my help. What can I do? Should I go? Should I intervene? Should I not intervene? ये थोड़ा सा moral dilemma भी हो जाता है हमारे लिए कभी कभी. ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों ऑप्शन है सारिका जी. जी, आपका ये डिपेंड करता है कि आपका उस फैमिली से इंटरेक्शन कितना है और कितना आप अपना अधिकार समझते हैं, तो उस हिसाब से उतना इंटरवेंशन आप कर सकते हो. ये तो सोशल नॉर्म्स हैं. और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे लड़ाई ज्यादा बढ़ गई है और वो फिजिकल असॉल्ट पे आ गई है, यू कैन रिपोर्ट इट टू पुलिस. 112 इज ओपन फॉर एवरीवन. जरूरी नहीं ना कि आपके अपने क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं, पड़ोस वाले को कर सकते हो. 100 नंबर भी वही है, 100 नंबर 112 नंबर, दोनों पे आप कोई किसी पे कॉल करेंगे, कॉल वहीं जाएगी और आपको कोई ना कोई जरूर आएगा. दैट इज द बेस्ट आंसर. Right. So it is not just तो I think वो morally जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो moral dilemma होता है, the police is there to help. It is completely your decision whether you want to go ahead or no. Sorry, I'll just go back to my question people had asked. Hello. Sarika, please go ahead. Sorry, I was saying that I'm just going through my questions that our community कुछ रह तो नहीं गया, मैं ये देखना चाह रही थी before we can go ahead. Okay. Ashish Garg ji had sent me a question in the morning. I'm just trying to get to that. If a woman has undergone a crime, can it be that she can avoid visiting the Thana or police chowki, since most of them are they do not wish to register complaint there due to obvious reasons, or is there any mechanism such as online FIR? So Ashish Garg ji ने पूछा है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है, can she avoid going to the Thana? Is there a way of lodging a complaint online? मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा व्हाट्सएप पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमने उत्तराखंड में,
और फिर हमारे ऑनलाइन का जो ईमेल है पुलिस हेडक्वार्टर का, वो हमारी वेबसाइट पे भी रहता है, और एक देवभूमि उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपसे साइंड कॉपी जरूर लेंगे। Okay. You know, कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस है। एवरी कंप्लेंट मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एफआईआर। उसमें से मैंने देखा जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उसमें 50% कंप्लेंट्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जी, आपसी समझौता हो जाता है, फैमिली के डिस्प्यूट होते हैं, और 30-35% केसेस में फिर वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेपरेशन में चला जाता है, कोई किसी उसमें चला जाता है। जी, Therefore, every complaint may not get converted into FIR, but complaint registration is easily possible online. Understood. So Ashish ji, I hope you got your answer. 94112780 is the number to send your WhatsApp complaints in case you are not able to visit. अगर आप महिला हैं, आपको डर लग रहा है और आप नहीं जाना चाहती हैं, तो आप ये नंबर यूज कर सकती हैं WhatsApp से अपनी कंप्लेन करने के लिए 94112780, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। बाय द वे मेरे फोन में 112 डिस्ट्रेस नंबर एडेड है, और कभी कभी मैंने गलती से दब जाता है, एंड आई सीन दैट एवरी सिंगल टाइम इट हैज बीन पिक्ड, और फिर मुझे बताना पड़ता है कि सॉरी ये गलती से लग गया। वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है सारिका जी। देहरादून का, उत्तराखंड का डाटा ये था कि इसको जो एक दिन में 22,000 ऐसे गलतियां से कॉल दब जा रही है पूरे प्रदेश में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर हम लोगों को उसको वो करना। तो 22,000 में से 2-4 मेरी भी नहीं होंगी अशोक जी, पक्का। Because I have found myself suddenly getting somebody on the other side of the number. Just for all our community members, आपने जो हमें questions भेजे थे, I had taken it down and I hope it has come out. I couldn't take specific names क्योंकि I realized कि वो as part of conversation ही निकल गए काफी answers. So, you know, I'm hoping that all of those were answered. If they were not, please write back to us. Before we conclude, Anupma, any concluding remarks from you? What would you like to see? And then I'll finally go to Ashok ji. Thank you so much for the opportunity. जो हम ऑडियंस की कमेंट्स और क्वेश्चंस कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, मैं भी एक शेयर करना चाहूंगी, ये बहुत पर्टिनेंट है। सॉल्यूशंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म कंसर्न है द लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स on roads in India. So since we have Uttarakhand के, we have the police leaders here with us. Public के behalf पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उत्तराखंड में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हो ताकि डार्क स्पॉट्स ना हो और सीसीटीवी कवरेज अच्छी हो। अगर आप ये कर दे तो उससे भी विमेन जिनको शाम को अंधेरे के बाद बाहर जाना पड़ता है किसी वजह से, they will get a sense of security. So this is conveying a public message to you. And about the solution, like we said, इतनी problems है, solution भी बहुत factors है, लेकिन अगर मैं summarize करूँ तो I think we can say the 3 E's, where E is education of women. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के स्टडीज में क्लियरली ये फाइंड हुआ है कि जो एजुकेटेड women हैं, they are better able to resist domestic violence and protect themselves from domestic violence. Awareness भी obviously ज्यादा होगी, तो एक एजुकेशन ऑफ women. सेकेंड, एम्पावरमेंट ऑफ women. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसलिए हम कहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें डर ना लगे कि अगर मैं अलग हो गई, इफ आई स्टैंड अगेंस्ट दिस क्राइम तो मेरा क्या होगा, वेयर विल आई गेट मनी फ्रॉम टू ईट. एंड इट आल्सो इम्प्रूव्स देयर बार्गेनिंग पावर इनसाइड देयर हाउस. तो एम्प्लॉयबिलिटी. थर्ड, आई थिंक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. कई बार ये भी होता है, गर्ल्स को लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं है, बिकॉज स्पेशली इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इन लॉज के हम भी परेशान है. कई बार पेरेंट्स का जो घर है वो भी सपोर्टिव नहीं होते, उन्हें लगता है व्हाई यू कम बैक, वही तुम्हारा घर है एंड ऑल दैट. तो हाँ, I've heard that so much कि मेरा घर ही नहीं है, where do I go? So अगर I think women, there should be transfer of property to women if we really want to safeguard them, so that they always have a roof to stay under. And third is enforcement, where comes enforcement of various laws that we talked about. And इसके साथ mindset change, जहाँ पे patriarchy का culture हटाना है, women के objectification का हटाना है. घरों में men should respect women in the house, ताकि जो बच्चे हैं, young boys, वो अपने घर में देखें that okay, in my household a woman is respected, in my household a woman is equal to a man, और यही वो आगे जाके करेंगे. So I think all of these, if I could summarize. Fantastic. So beautifully put together, Anupma. Educate women, empower women, and transfer of property. I think fantastic. Thank you very much. I think it sums it all. And I think that just does not lie with the police or the judiciary. I think it lies with the community.
the entire all of us need to kind of take that charge अपने हाथ में हमें लेकर उसको आगे लेके जाना है। श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी, something that you think देहरादून के लोगों को पता हो, your concluding remarks here? सारिका जी, I'll just conclude with one thing. ये जो आशीष जी का आपने मैसेज बताया कि women are sometimes they fear going to the police station. So let me tell you कि हम इतना we are working towards it, हम इतनी अपनी फोर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, उन्हें लगातार ट्रेन कर रहे हैं, उनको women friendly, मतलब एक तरह से इस तरह से हमने अपने हर पुलिस स्टेशन में, जैसे सर ने बताया कि हमारी महिला हेल्प डेस्क ऑपरेशनल है और महिलाओं की तैनाती है, सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो स्पेशली महिला डेस्क में allotted है, and there are more than 10 to 15 महिला constables who are posted in every thanas in Dehradun city, I should say. लगातार हमारी जो फोर्स है, हमारी महिला चीता जो है वो मूवमेंट पे भी रह रही है शहर के एरिया में। तो महिलाओं को मेरे ख्याल से इस एक पुलिस को बहुत ही फ्रेंडली वे में लेना चाहिए कि वो मित्र पुलिस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं यही कहूंगी कि वी हैव डिप्लॉयड मोर ऑफ महिला पुलिस इन दी पुलिस स्टेशंस, और हमारी फील्ड में भी महिलाएं तैनात हैं। तो प्लीज डोंट फियर, अपराध जो है वो हम तभी लड़ पाएंगे, तभी रोक पाएंगे अगर उसकी रिपोर्टिंग होगी। हमारे तक अगर रिपोर्टिंग नहीं पहुंचेगी और आपके साथ लगातार क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो पुलिस जो है वो भी हेल्पलेस है। इसलिए प्लीज कम फॉरवर्ड, डोंट हाइड द क्राइम व्हिच इज हैपनिंग अगेंस्ट यू, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। Thank you, Shweta ji. I think this is very, very nice. At least as a Dehradun citizen, I feel more empowered, and I feel that I will be able to go. Mitra Police is a campaign that the police department is doing. Please understand that there's a lot of sensitization happening, and please go and report. जब तक आप report नहीं करेंगे, उसके ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा. Shweta ji, thank you very much. And Ashok ji, I'll finally come to you. Your experience, I know we spoke about the fact कि जो हमारा perception पहले था से अब तक बहुत कुछ change हो रहा है. How would you like to conclude it? And I'm sorry, before I conclude, I'm continuously getting this one message from Mrs. Shakti Manocha as a comment. Is there anything specific for the elderly women? Is there कुछ elderly women के लिए crime against? So पहले उसके ऊपर and then your concluding remarks. देखिए, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अलग से हेल्पलाइन है, उसके लिए अलग से कानून बन गए हैं, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स को अच्छे से नहीं रख रहे हैं तो वो उनकी जो विल है उसको वो भी निरस्त माना जा सकता है। उसमें कानून में काफी चेंजेस आ गए हैं। तो सीनियर सिटीजन की अलग से हेल्पलाइन बनी हुई है, और वो 112 पे भी रिपोर्ट करेंगे तो भी हमारे लोग जरूर पहुंचेंगे, और ये उनको उस लॉज को पढ़ने की जरूरत है सीनियर सिटीजन के लिए। जो दूसरी बात आई, सिक्योरिटी की बात, सेफ्टी की बात आई, मैं आपको हम सब दून के रेजिडेंट हैं आज की तारीख में, तो सर्टेनली आई वुड से कि इंडिया में तो दून मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट। हम लोगों ने यूपी में भी सर्व किया है और बाकी जगह, तो यहाँ रात के 12 बजे भी आई कैन सी गर्ल्स वुमेन ड्राइविंग कार्स अलोन, सो आई थिंक वी लिव इन अ फार सेफर सिटी। थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज दैट जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये जरूर होना चाहिए, बट इसमें कहीं कहीं कुछ लोग इसका जो मिसकंसेप्शन जो लेके चलते हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को एज इफ वुमेन को उठाना है, आदमी को गिराना है। ये नहीं, आदमी मैन जहां है वो रहे, वुमेन उठे, जितना उसके बराबर है उससे ऊपर जाए, बहुत अच्छी बात है। सो हमें वुमेन एम्पावरमेंट शुड नॉट बी दैट वी आर फाइटिंग विद मेन, ठीक है, वी आर राइजिंग, वी हैव टू राइज। अपनी लाइन बड़ी करेंगे, उसकी लाइन छोटी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम उन्हीं से लड़ते रह जाएंगे, राइट। तो ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है, तो ये एक कोऑपरेशन की बात है। और लास्ट बात, जैसे मैंने कहा कि हमें ज्वाइंटली, मैन और वुमेन दोनों को ज्वाइंटली क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लड़ना है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ना, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लड़ना है। सोसाइटी में हर आदमी क्रिमिनल नहीं है, और नहीं हर औरत क्रिमिनल है, नहीं हर महिला क्रिमिनल है, तो हमको जो भी क्रिमिनल एलिमेंट है उसके अगेंस्ट लड़ना है। अगर हम लोग ज्वाइंटली लड़ेंगे और विद अवेयरनेस लड़ेंगे और पुलिस के साथ मिलकर चलेंगे, तो सर्टेनली हम लोग और अच्छे सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी. The fact that we are in one of the safer places in India, it makes me proud to live in Dehradun. Yes, there's a long way to go. हमें बहुत कुछ करना है. Those are my concluding remarks. Please go and make your reports. Like Shweta ji said, the stations are more women friendly. We have been sensitizing everybody. But the concluding note that I'm getting is that, look, the crime against women is not against men alone. It is about equality and not about discrimination. Ashok ji, I think what we do want to do is have another session specifically. ये मेरी दोस्त विनीता ने भी फेसबुक पे डाला था कि एक तरफ से हम बहुत ज्यादा women empowerment की बात करते हैं, but दूसरी तरफ से शायद हम कभी-कभी अपने laws को exploit भी कर देते हैं. And maybe, we also need to sensitize the other side. कि हम कैसे, how do we get out of that sensitization? So this entire fight is not about bringing the men down. The fight is men and women together taking it ahead. Yes. It's the criminals. It's against the crime. Yes. It is not against men, and that mindset needs to change. Only then will we be able to take it ahead. During the conversation, Anupma said it multiple times that behavioral change की जरूरत है. वो behavioral change खाली आदमियों के against नहीं है. Behavioral change actually किस तरह से आप अपने बच्चों को bring कर रहे हैं. संस्कार तो महिलाओं से ही आते हैं. सारिका जी, मदर से सबसे ज्यादा संस्कार आते हैं. You are absolutely right, अशोक जी. बहुत सही है. वो शायद इतनी generation से चल रहा है क्योंकि वो खुद भी suppressed थी. So it has kind of gone from generation to generation. And I'm honestly, as a mother, I can say it that today's generation has the power to change the next few generations. अब मैं history को हम लोग change नहीं कर सकते. But what we can do is not make it about men alone. Make it about that particular crime, and not just look at it at a very tactical level कि इसके against मैं इसको किसी तरह कैसे हटा दूँ. Look at it about how are you raising your boys? Is there equality at home? Are you actually practicing it at home? क्या आपके घर में ये practice हो रहा है कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं, क्योंकि जो घर में होगा वही आगे जाके community में होगा. It is a mirror of what we are doing at home. I think with that note, I will conclude this session. Thank you very much. मुझे इतना powerful panel मिला है that this could have gone on for another hour. I'm sorry, but we have to conclude. We are already at 1:21. Thank you very much, everybody. Anupma, thank you for your time. Shweta ji, thank you very much. Thank you, Sarika. Please keep guiding us. Thank you, everyone. Also to my friends, please subscribe to Doon Citizens Online. We would love to hear from you. जब तक आप लोग आके हमें बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, हम आगे इसको ले जा नहीं पाएंगे. Please go on Facebook, go on YouTube, subscribe, and keep sending your comments. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you so much, everyone. Bye. Take care. Stay safe. Thank you. Bye.